آپ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں, آپ سب کچھ کر رہی ہیں. کہتے ہیں کہ جو خاتون باہر زیادہ گھومتی ہیں, یعنی کہ گھومنے سے مراد میری یہ کہ زیادہ ذمہ داریاں باہر کی ادا کرتی ہیں, وہ گھریلو سیاست میں نہیں ہوتی, نن بھاوج والی. باہر جاتی ہے تو میرے خیال سے جو ایک عورت صرف اپنا گھر سنبھال رہی ہے, بچے سنبھال رہی ہے, خاندان سنبھال رہی ہے, اپنی لاس کو سنبھال رہی ہے, مقصد ان سے جو ہر طریقے کے معاملات ہیں. لیکن جب ایک بار عورت باہر جاتی ہے تو مختلف فیلڈ کے لوگوں سے ملتی ہے, اس کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ بڑھتا ہے, اس کی سوچ بوجھ سمجھ اور اس کی ایجوکیشن بھی بڑھتی ہے, ایکسپیرینس بڑھتا ہے. تو میرے خیال سے وہ اپنے آپ کو ان خاندانی جھگڑوں سے دور کر لیتی ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ سادہ فضول سی چیز ہے, ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کے بھلائی کے. عورت کامیاب وہی ہے جہاں پہ اس کی بیک اسٹرانگ, ٹھیک ہے نا, جب تک آپ کا گھر والے آپ کے ساتھ نہیں, آپ کبھی کامیاب نہیں ہے کسی بھی فیلڈ. میڈیا جو ہے نا, جو ڈرامہ دکھاتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ صاف تعلیم ہے, نہیں زندگی ڈرامہ نہیں ہے, لیکن جو میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے وہ معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں, معاشرے کا اثر پڑتا ہے اس کا. آپ نے جس ساتھ کا ذکر کیا ہے وہ ساتھ اگر ہمارا میڈیا دکھائے تو کیا معاشرے کو اس کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ جو شوہر حضرات اپنی بیویوں کو گھر پہ رکھتے تو پلیز ان کے لیے یہ ساری چیزیں کریں. پیسہ ہے, گھر ہے, اس میں انہیں شامل کریں. یہ کون سی بات ہوئی کہ سارا پیسہ اپنے نام, ساری بنگلے گاڑیاں اپنے نام, اور بیوی کو اپنے اس کا میرا مددگار چھوڑیں. دیکھیے دونوں طرح کے مرد, اگر وہ مرد ہیں تو جب میری والدہ کی قبر بن رہی تھی تو میرے بھائیوں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ میں ان کے پیسوں سے قبر بناؤں اپنی والدہ کی. میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. وجہ جب زندگی بھر میری اماں کی عزت رہی, ان کی خواہش رہی, جو دعائیں میری والدہ دیتی تھی میرے والد کو میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو شوہر اپنی بیویوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے, چاہے زندہ ہو یا زندہ نہ ہو, ان کی بیویوں کے مرنے کے بعد بھی وفادار ہیں. آپ ہماری دعوت دیتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم مل کے تو وہ تو وہی کہتی ہے دیکھیں نا میرے تو گھر ہے, بچے ہیں, اور وہ بہت سارے مسائل نکلنا مشکل ہے. تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا بھی گھر ہے اور ہمارے بھی بچے ہیں, اور الحمدللہ سب پروفیشنلائز بھی ہے. اور جہاں گھر کی بات ہے تو میں اپنی کوکنگ میں خود کرتی ہوں, یا گھر میں ڈیٹیوسٹی جو رکھتی ہوں میں رکھتی ہوں, ایک پلیس ہے صاف کرنے کا, پلانٹیشن کا مجھے بہت شوق ہے. مطلب ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو نا مینیج کرنا ہوتا ہے. ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچوں کو کتنا کوالٹی ٹائم دیتے ہیں. میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ تھا کہ وہ بہت بزی ہوتے ہیں, لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ کوالٹی ٹائم دیا کرتے. جتنا بھی ٹائم بچوں کے ساتھ ہم کوالٹی, اور بچوں کو میں نے خود پڑھایا, مطلب بچوں کو پڑھاتی بھی خود ہیں, گھر کی صفائی بھی خود کرتی ہیں, کھانا بھی خود پکاتی ہیں. ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ایک عورت کی ذہنی کیفیت, دماغی کیفیت, مطلب وہ جو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے وہ کس سطح پہ جا کے زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ مطلب وہ ایک گھر میں اپنے کام کر رہی ہے تب, یا وہ باہر زیادہ کام کر رہی ہے تب؟ ذہنی سکون جو ہے نا باہر اللہ رب العالمین نے ظاہر گھر بنایا, ذہنی سکون سے نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کون سی ماں ہے جس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ اگر میں تقابل کروں تو یہ ماں جو ہے زیادہ بہتر ہوگی؟ دیکھیے اصل میں جو ذمہ داری ہے نا ماں کی, وہ چاہے پروفیشنل ہے یا نان پروفیشنل ہے, گھریلو میں جو ہے نا وہ, لیکن یہ ہے کہ وہ ذمہ داری حق الامکان اس نے اس کو ادا کرنا ہے. لیکن اصل چیز جو آپ سب بھی بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز ہوتی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے نا, اس اور بچے کے ساتھ جو اس کا ریلیشن ہوتا ہے. جیسے طالبہ بھی بات کی ہے, لیکن تھوڑا سا بریک ضرور لیتی ہے اس پیریڈ میں. ذرا سا بچہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے. میں بھی ظاہر کرنے میں بریک کیا, جب میرا بچہ تھوڑا سلائق ہو گیا تو پھر میں نے دوبارہ اپنا فیشن اسٹارٹ کیا. لیکن یہ ہے کہ جو آپ جیسے بچے کی اس لحاظ سے تربیت کے لحاظ سے کہہ رہی ہیں, تو دیکھیں تربیت تو سمجھ لیں کہ مطلب وہ فرض جیسے شروع ہو جاتی ہے ڈیورنگ پریگنسی, وہ بھی دراصل اس کے سارے افیکٹس ہوتے ہیں. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی, آپ لوگ مجھ سے واقف ہیں. آج کے ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک فورم کا آغاز کیا ہے, اور آج ہم ہیلپ انٹرنیشنل سینٹر کے تعاون سے فورم کر رہے ہیں. موضوع ہے میرا ورکنگ وومن اور ہاؤس وائف کون زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں کے روپ میں جنت, بیٹی کو رحمت اور بیوی کو راحت بنایا. عورت ہر جگہ پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے, سیاسی میدان ہو, سماجی میدان ہو, یا کوئی اور یا گھر کا میدان ہو, عورت ہر جگہ اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بات کرنے کے لیے کہ کیا ہم عورت کو وہ عزت دے رہے ہیں جو اس کا حق ہے. ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں آپ کو ایک خاتون سے ملاتے ہیں جو ایک متاثرہ خاتون ہے, ایک گھریلو خاتون ہے, اور جنہوں نے ایک اپنی زندگی میں ایک مشکل سے گزری ہیں. وہ مشکل کیا تھی, ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا, میں چاہوں گا کہ پہلے ہم ان سے بات کر لیں. اس کے بعد ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے. آپ کا تعارف کراؤں گا, اس کے بعد میں معزز مہمانوں سے.
میں گفتگو کرتا ہوں آپ سے مس خطیجہ، آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا اور کیا وجہ تھی کہ آپ اپنا گھر چھوڑنے میں مجبور ہوئی؟ دیکھیے ہم بہت خوشحال فیملی تھے. ہمارے ہسبینڈ نے شادی کے 20 سال بعد اپنی خواہش سے ایک دوسری شادی کر لی اور ان کو کنونس کیا یہ ریزن دے کے کہ بھائی میری فرسٹ وائف جو ہے وہ میرے گھر کا میرے بچوں کا خیال نہیں رکھتی ہیں، تو آپ ان کی جگہ میرے گھر کا خیال رکھیں. تو اس طرح کنونس کر کے ان کو پہلے تو ان کے دوسرے لیگل جس کو میں کہتی ہوں تعلقات چلتے رہے، اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی. پھر جب وہ خود بھی مدر بن گئی سیکنڈ وائف، تو انہوں نے پریشرائز کر کے میرے ہسبینڈ سے مجھے ڈیورس کروا دیا اور ڈیورس کروا کے مجھے ایمٹی ہینڈڈ گھر سے باہر نکلوا دیا گیا، کیونکہ اب وہ کہتی تھی کہ ان کو شیئرنگ برداشت نہیں ہو رہی. اور میرے بچے بھی لے لیے اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ بچوں کے ساتھ میں آپ کو رکھوں گا، حالانکہ ایسی کنڈیشن کو دیکھ کر انہوں نے سیکنڈ وائف سے شادی کی تھی کہ میں بچوں کا خیال نہیں رکھتی. لیکن کہا بچوں کو آپ کے پاس رکھوں گا، ہمارے بچوں کو، اور لیکن آپ سے بھی ڈیورس کے بعد میں فزیکل ریلیشنز رکھوں گا. اور یہ کہہ کے انہوں نے مجھے، جس کو میں نے ریفیوز کر دیا آف کورس، اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اور گھر سے نکال کے بہت مشکلوں سے میں سارم بنی ٹرسٹ کے آفس پہنچی ہوں. وہاں بھابھی کے پاس آئی ہوں، بھابھی نے سنبھالا ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں، کانپتی ہوں سوچ کے بھی کہ اگر میں بھابھی نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا. مجھے بالکل روڈ پہ نکال دیا گیا تھا ڈیورس دے کے. آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں گریجویٹ. ٹھیک ہے. اب آپ کو جب یہ واقعہ سے گزری آپ، اس کے بعد سارے مانیٹرس میں آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے آج موجود ہیں، کوئی اور ایسے لوگ آپ کے آس پاس رشتے دار جنہوں نے آپ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہو؟ کچھ جو ان کی سیکنڈ وائف تھی ان کی فیملی کا تھوڑا ایسا ان کا امپریشن تھا کہ جن کی وجہ سے مجھ پہ دروازے نہیں کھلے. میری مدر نے بھی، میں مدر کے پاس بھی گئی، انہوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا. والدہ نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا؟ آپ کی نہیں، کیونکہ وہ جو سیکنڈ ان کی تھی وہ ہراسمنٹ کا، ان کے ایکٹیویٹیز تھیں، وہ ہراسمنٹ کرتے تھے مجھے بھی، میرے ہسبینڈ کو بھی، جس کو میں نے کہا کہ پریشرائز کیا انہوں نے، تو ہراسمنٹ کے تھرو ہی پریشرائز کیا تھا. مطلب وہ خوف لائف سیٹ نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی والدہ نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا یا گھر والوں نے سپورٹ نہیں کیا. جی ٹھیک ہے. لیکن بہرحال معاشرے کی طرف سے آپ کو کوئی ایسا سیکٹر جس کے بارے میں آپ کہیں گے یار اگر میں یہاں ہوتی، یہ پوزیشن پہ ہوتی تو میں بچ سکتی تھی یا میں مقابلہ کر سکتی تھی؟ دیکھیے میں ابھی بھی یہی کہتی ہوں کہ I'm very thankful کہ اس ادارے کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں پیمپر کیا، ہمیں ایسی کنڈیشنز میں رکھا جو کہ پاسبل. میں نے کہا نا کہ میں سوچتی ہوں تو میں کانپتی ہوں کہ آن دا روڈ میرا کیا حال ہوتا. اس طرح سے مجھے بے آسرا نکال دیا گیا فار نو ریزن، جسٹ بیکاز دا سیکنڈ وائف چاہتی ہیں. لیکن ابھی بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے فیملی ایلڈرز، بوتھ سائڈس کے جو فیملی ایلڈرز جس طرح ہمیں سنبھال سکتے ہیں، جس طرح ہمیں اس کنڈیشن کو دوبارہ واپس کر سکتے ہیں، وہ اور کوئی نہیں کر سکتا اس وقت. ٹھیک ہے. اور اس وقت تک بہت بڑی بات ہے ایک ایسا ادارہ ہونا کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو میں بھی کہاں ہوتی کہ وہ سیکنڈ فیملی کی جو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے مجھے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. وہ فیملیز بھی جو میری فیملیز ہیں وہ بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. آپ نے مس خدیجہ کی کبھی گفتگو سنی. ہمارا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ اگر مس خدیجہ ایک پاورفل خاتون ہوتی، ایک سماجی خاتون ہوتی یا ایک ملازمت پیشہ خاتون ہوتی تو کیا ان کی زندگی زیادہ محفوظ ہوتی؟ ایک شوہر اگر وہ کہیں افیئر چلاتا ہے کسی آفس میں کہیں پر بھی، اور افیئر چلانے کے بعد وہ وہاں شادی کر لیتا ہے، تو کیا شادی کرنا اس کا گناہ ہے یا وہ افیئر چلانا غلط ہے؟ ہم ان سب موضوعات پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جو ذمہ داریاں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو مختلف جگہوں پر نوکری کر رہی ہے یا ملازمت کر رہی ہے یا کچھ اور پولیٹیکل فگر ہے، وہ زیادہ محنت کر رہی ہے یا وہ جو گھر میں کام کر رہی ہے وہ زیادہ محنت کر رہی ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے. میں آپ کا تعارف کراتا چلوں اپنے مہمانوں سے. میرے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر سعدیہ معین صاحبہ. آپ اینکر ہیں، پرسن ہیں، ہوسٹ ہیں، ٹی وی ہوسٹ ہیں، اور صحت زندگی میٹرو نیوز پہ آپ پروگرام کرتی ہیں. ہمارے ساتھ ہمیشہ فورم میں شریک رہتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کے ساتھ موجود ہیں مس عالیہ سالم مرنی. آپ کا تعارف میں کیا کراؤں، لوگ جانتے ہیں آپ کو. آپ ماشاء اللہ انسانی حقوق کے لیے، چاہے وہ مردوں کا حقوق ہو چاہے وہ خواتین کا حقوق ہو، آپ دونوں کے لیے کھڑی رہتی ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ فورم میں آپ نے
ने इस बात का गुस्से का इजहार किया था कि भाई मैं दोनों के लिए होता मैं ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हूँ, Human rights की बात। women या men नहीं, मैं ह्यूमन राइट्स की बात। आपको जानते हैं, आप वाइस चेयरमैन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं सारिमनी ट्रस्ट की। अली साहब, आपके तवज्जुह से हम मिस खदीजा से बात की, इंशाल्लाह इस मौजू को लेकर आगे चलेंगे। इसके साथ साथ मैंने दावत दी है ख़ास तौर पे क्योंकि ये समाजी फिगर हैं, एक हमारी होस्ट हैं, एंकर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से भी कि सियासी मैदान में भी हमारी ख़वातीन बहुत कुछ अपने आप को मनवा रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असरा यास्मीन, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। डॉक्टर साहब, आप काउंसलर भी हैं और उसके साथ साथ आप पब्लिक रिलेशन भी देखती हैं जमात इस्लामी का, और साथ में आप घर भी चला देखती हैं, घर की जिम्मेदारियां भी अदा करती हैं और डॉक्टर भी हैं। तो हम चाहेंगे कि इसको भी हम बात कर सकें। आपके साथ मौजूद हैं मोहतरमा साइमा नईम साहिबा, आप भी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है आपका और आप भी पब्लिक रिलेशन जमात इस्लामी का देखती हैं। टॉपिक हमारा यही है कि कौन सी खातून जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्या घर में रहने वाली खातून जो वो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ अदा करती है या वो खातून जो बाहर निकल के आप लोगों की तरह अदा कर रही है। सवाल ये है, मैं डॉक्टर सादिया आपसे ही स्टार्ट लेता हूँ। आप बाहर जाती हैं, आप होस्टिंग भी करती हैं, आप सब कुछ कर रही हैं। कहते हैं कि जो खातून बाहर ज़्यादा घूमती हैं, यानी कि घूमने से मुराद मेरी ये कि ज़्यादा जिम्मेदारियां बाहर की अदा करती हैं, वो घरेलू सियासत में नहीं होती, नन भावज वाली। तो आपकी यही मामला हैं? थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा हबीब साहब, मुझको इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम मेहमानों को। अच्छा, देखिए आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन, दोनों की अपनी जगह। जब औरत बाहर जाती है तो मेरे ख्याल से जो एक औरत सिर्फ अपना घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, खानदान संभाल रही है, अपनी इन-लॉज को संभाल रही है, मकसद उनसे जो हर तरीके के मामला हैं। लेकिन जब एक औरत बाहर जाती है तो मुख्तलिफ फील्ड के लोगों से मिलती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसकी सूझबूझ समझ और उसकी एजुकेशन भी बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को इन खानदानी झगड़ों से दूर कर लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सादा फजूल सी चीज़ें, हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जो लोगों के भलाई के लिए हो। तो मुस्तफ़ा हबीब साहब, घरेलू खातून अपनी जगह अहमियत के हामिल है और जो वर्किंग लेडी है उसकी जिम्मेदारियां जरूर है, लेकिन वो भी अपनी जगह अहमियत, उसको साथ साथ घर को भी देखना पड़ता है। और मैं यहाँ बताऊँ आपको कि अगर वर्किंग लेडी है तो वो उसी सूरत कामयाब है कि अगर वो टाइम मैनेजमेंट से चलती है, हर चीज आप जिम्मेदारी से टाइम पूरा करते हैं, हर चीज अपना खाना बनाना, बच्चों को देखना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना। तो मैं समझती हूँ कि दोनों अपनी जगह अहमियत के हामिल है। आप इस बात को ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे कि एक औरत जो कि बाहर भी जा रही है, घर भी देख रही है, उसकी जिम्मेदारियां जरूर है, लेकिन अहमियत दोनों। लेकिन अगर फर्ज करें कि आप बाहर जा रही हैं और उसके बाद आप मुकम्मल जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं बाहर की, ऑफिशियल सारी अपनी, उसके बाद आपको घर आना है, तो आपकी जो लेवल है बर्दाश्त का लेवल वो कितना होता है? मतलब घर पहुंची हैं और घर आते ही सुने सास ने तन मारा कि आ गई, घूम के आ गई, तो फिर आप कहाँ बर्दाश्त करेंगी वहाँ? देखिए, बात आपकी चूंकि सास आपकी वालदा की जगह, बल्कि वालदा से ज़्यादा बड़ा मर्तबा है, क्योंकि आपकी शौहर की वालदा है। वो आप समझ रही हैं? नहीं, तो यहाँ कह रही हमारा हैं दीन इस्लाम मजहब भी कहता है जब शौहर का दर्जा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने मजाज़ खुदा की अहमियत दी है, हैसियत दी है उसे, तो उसकी माँ का दर्जा भी बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, एक औरत के अंदर बर्दाश्त बहुत ज्यादा है एक मर्द के मुकाबले में। अगर वो अपने आप को मतलब अपने घर को बना के चलना चाहती है, सास को माँ का दर्जा देती है, और सबसे बड़ी बात हर चीज काम करके वक्त पे जाती है। देखिए, सास आपको ताना देंगी क्यों? उस वक्त देंगी ना जब आपने काम नहीं किया होगा, आपने खाना बना के गई, काम कर गई, उनको भी ख्याल कर रही है, घर का भी कर रही है। अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलें तो मुझे नहीं लगता कोई आपको ताना दे सकता। ठीक है, मेरा इसमें बहरहाल एक और भी है कि वो बैलेंस क्यों करें, मतलब बैलेंस घर वाले क्यों नहीं करें? जी मिस आलिया, आपसे इस मौजू पे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, इस बात पे देखिए, औरत कामयाब वही है जहाँ पे उसकी बैक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना? जब तक आपका घर वाले आपके साथ नहीं, आप कभी भी कामयाब नहीं हो किसी भी फील्ड में। बिल्कुल। देखो, दो खवातीन साथ मिले तो बिल्कुल हाँ में हाँ मिला। लेकिन ये है कि तजुर्बा अलग अलग होता है, थोड़ी सी सोच अलग अलग होती है, और सोच का अलग बस मुख्तलिफ राहें हैं ना जो हम दिखाते हैं। इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि हमने एक बेहतर जिंदगी गुजारी है, वो हमारी तरह अपनी जिंदगी को लेकर चलना चाहते हैं। तो ये बड़ी एक मुश्किल सीट है जिसमें ये भी बैठी हैं और मैं भी बैठी हूँ। तो कोशिश यही है कि ऐसी बात करें जो आसान हो, जो समझ में आए और जो हमारे यंगस्टर्स के दिल में उतर जाए। हम अपना वक्त गुजार चुके हैं, हमने अब तो हम मेरी ना वालदा जिंदा है ना मेरी मदर इन लॉ जिंदा है। अब तो अगर अपनी औलादों की शादी करूंगी तो मैं खुद इस वक्त सास होंगी, तो मैंने वो वक्त गुजार दिया। मैं ये समझती हूँ कि औरत चाहे वो घर के अंदर है चाहे वो घर के बाहर है, उसकी बेसिक जो जिम्मेदारी है वो घर है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मर्दों को, अपने माशरे के मर्दों को आजाद छोड़ दूं।
नाम नफका उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें अदा करनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहती कि औरतें कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ शेयरिंग कर लूंगी। जिस चीज की जिम्मेदारी अल्लाह ने हम पर नहीं डाली, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम क्यों अपने ऊपर ले लें। हाँ, हम उनको सपोर्ट करने के लिए निकल सकते हैं। हाँ, अगर हमने कोई ऐसी प्रोफेशनल, हमने कोई तालीम हमारे पास है जिसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, हम निकल सकते हैं। अच्छा, इसी में मैं एक सवाल ये डालूं, आपने जो तालीम की बात की, जो हमारी लड़कियां खास तौर पे मुख्तलिफ प्रोफेशनल तालीम हासिल करती हैं और फिर वो जब शादी के बाद अमूमन ऐसे होता है, मेडिकल सीट्स की भी होती हैं, इंजीनियरिंग की भी होती हैं, घरों में बैठ जाती हैं, तो ये भी तो कहा जाता है कि यार आपने सीट ज़ाया करा दी, अपनी एक अच्छी खाते लड़का पढ़ लेता, कोई जॉब अप कर लेता। अब ऐसा नहीं है, अब वो घरों पर बैठ नहीं जाती, अब वो ब्रेक लेती हैं। यानी वो कुछ टाइम के लिए, जब तक वो अपनी फैमिली को बना रही है, यानी बच्चे, जाहिर है माँ ने जब बच्चे को जन्म देना है तो उसको वो रेस्ट चाहिए, बच्चे को टाइम चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए वो ब्रेक लेती हैं और ब्रेक के बाद वो फिर वापस आती हैं और फिर वो अपने शौहर की मर्जी से आती हैं, अपने इन-लॉज की मर्जी से आती हैं। और मेरे माशरे की खूबसूरती है कि एक औरत सिर्फ बीवी नहीं बनती, वो बहू भी है, उसको सास को भी साथ ले। और ये मेरी खूबसूरती है माशरे की, मैं कभी भी नहीं चाहती, मैंने कभी ये अल्फाज नहीं अदा किए इन रिश्तों को तोड़ो या छोड़ो। मैं तो कहती हूँ उनको साथ लेकर चलो, ये आपकी मजबूती है। क्योंकि अगर हम आगे चलकर बात करेंगे तो जब कभी जिंदगी में मैंने ऐसा देखा, हमारे माशरे में ये सासें बहुत बड़ी ताकत बन जाती हैं बहुओं की। कब? जब आपका शौहर आपका नहीं रहता। मैंने अपने शेल्टर होम में ऐसे केसेस भी देखे हैं कि शौहर ने तलाक दे दी है और जो सास है वो अमेरिका से आके अपनी बहू को पैसे दे रही है, जो बहू मेरे पास शेल्टर होम में मौजूद है। तो ऐसी एग्जिस्ट करती है ना सासें, और ऐसी बहुएं भी। अच्छा, ऐसी सासें करती तो है, लेकिन मतलब ये कि शायद हमारा मीडिया जो है ना, जो ड्रामा दिखाता है वो दिखाता है कि साफ तालीम है। नहीं, जिंदगी ड्रामा नहीं है, लेकिन जो मीडिया दिखा रहा होता है वो माशरे का असरात होते हैं, माशरे का असर पड़ता है उसका। आपने जिस सास का जिक्र किया है, वो सास अगर हमारा मीडिया दिखाए तो क्या माशरे को उसके असरात नहीं पड़ेंगे? हम माशरे को, माशरा हमसे है ना, हम लोग खुद नेगेटिव चीजों को ज्यादा प्रमोट करते हैं ना। हम चैनल्स को तो उस वक्त तक देखते रहेंगे जब तक कोई हंगामा। आप देखिए कि चाहे वो कोई चैनल है, न्यूज चैनल है, जहाँ पे यहाँ तक कि हम देखते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हाथापाई भी हमने देखी है कि अगर उठ के थप्पड़ मार दिया, अगर इस हद तक नौबत आ जाती है तो वो तो एक बेहतरीन उस वक्त जो रेटिंग जो चीजें, देखिए इन वो चीजें इस वक्त मैं खाली अगर तस्वीर की बात करूं, जो सोसाइटी का एक चेंज मैंने देखा, पहले जिन तस्वीर को स्कार्ट, मतलब वो कहते थे कि ये तो खराब हो गई, ये मुंह बना लिया ऐसा, ये आंख टेढ़ी हो गई, अब वो पोज है। अब वो तस्वीर बहुत अच्छी होती है जिसमें आपका मुंह टेढ़ा हुआ है। और जब मैंने अपने वक्तों में देखा तो मुझे मैं जब तस्वीर खिंचवाती हूँ, आज तक बहुत तस्वीरें खींचती हैं, मेरे जहन में एक ही बात है कि वो एक मुस्कुराहट होगी, एक मुस्कुराहट आपके चेहरे में, आपके जो पैर है वो एक साथ जुड़े हुए होंगे। और मुस्कुराहट में मैं ये सोच के रखती हूँ कि जिंदगी रहे ना रहे, मरने के बाद भी कोई तस्वीर देखे तो मुस्कुराता चेहरा उसके सामने है। लेकिन आप देखिए ना कि इसको अगर आप जिद्दत कहते हैं तो जिद्दत ही सही, लेकिन जिद्दत कहाँ से कहाँ निकल गई है, तो फिर माहौल उस अंदाज से बदल रहा है, तो आपको वो चीजें रिश्तों में भी नजर आएंगी। अच्छा, मैं चाहूँगा ये हम साथ साथ ही आपसे मिस खदीजा, जो आपके सारी मनी ट्रस्ट की तरफ से आपके साथ आई हैं, हमने इनकी स्टोरी भी शुरू में सुनी है आपके, और इस पर भी आखिर में भी बात करेंगे सब लोगों से। इधर आपने भी सास का जिक्र किया ना, इनकी सास का किरदार या इनकी वालिदा का किरदार आपको कैसा लगता है? देखिए, इनकी जो वालिदा है ना, वो तो इसलिए मैं उनको कुछ भी नहीं कह सकती कि वो ऑलरेडी अपने दामाद के घर में रह रही हैं, इनके वालिद हयात नहीं है और इसीलिए वो इसे सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। एक तो मैं ये कहता हूँ कि जो औरतें जॉब नहीं करती, घरों में रहती हैं, मजा। आपने तो बड़े आराम से एक बात कह दी कि जी वो तो पढ़ लिख कर और घर में बैठ जाती है, प्रोफेशनल है। जरा अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, आप प्रोफेशनल हो, माफ कीजिएगा, आपसे मुराद मर्द, ठीक है। ये कभी ऐसा होता है कि कोई चीज बहुत दिल को लगती है। एक ऐसी औरत के लिए ना जो प्रोफेशनल है, जब उसको उसके घर का मर्द घर में बिठाता है और अगर वो इज्जत से बैठ जाती है, उसकी अजमत को ना 100 सलाम है। आपकी उस बात से मैं इनकार नहीं करूंगी कि भाई उसके पास सीट थी, उसको ये कर, मैं आपकी बातें मान लेती हूँ, लेकिन उस लड़की की अजमत पे क्या कहिएगा, अपना मुस्तकबिल दाव पे लगाया। क्योंकि अगर मैं अपनी इस केस की भी बात करूंगी तो इसने सारी जिंदगी लगाई अपने शौहर को आगे बढ़ाने में। उसने घर खरीदा, घर किसके नाम से खरीदा? अपने नाम से खरीदा। जब इसे घर से निकाला तो इसको इस तरह जिल्लत के साथ निकाला गया। तो यानी इसने घर भी बनाया, सब कुछ किया, लेकिन नाम किसके हुआ? शौहर के नाम हुआ। ये भी पढ़ी लिखी थी, अगर उस वक्त कोई सफर शुरू करती, अगर ये किसी मैदान में आती तो आज ये किसी पोजीशन पे बैठी होती। पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी फैमिली की है, लेकिन इसने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया। किसके लिए? अपने शौहर के लिए। और जब आखिर क्या हुआ? आखिर ये तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल है। चले मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। अगर आप इसको सवाल बनाते हैं तो मैं इसमें हमेशा ये कहूंगी कि औरत को अपनी पोजीशन ऐसी जरूर रखनी चाहिए कि अच्छे वक्तों में ये ज़हन में रखे कि बुरे वक्तों में क्या होगा। एक बात इसको और आगे कह दी, मेरे भी वालिद इस दुनिया से चले गए। मेरी मतलब मैं खुद बहुत छोटी थी, शायद 12 साल की मेरी उम्र होगी, लेकिन
लेकिन मेरी पोजीशन में मेरे अब्बा ने मेरी अम्मी की कब्र तक के पैसे दिए हुए थे, ठीक है, घर भी अम्मी के नाम था। तो ऐसे भी मर्द है ना, जब मैं इनके शौहर का सोचूंगी तो मुझे अपने वालिद भी याद आ रहे हैं। तो जो शौहर हजरात अपनी बीवियों को घर पे रखते तो प्लीज उनके लिए ये सारी चीजें करें। पैसा है, घर है, उसमें उन्हें शामिल करें। ये कौन सी बात हुई कि सारा पैसा अपने नाम, सारी बंगले गाड़ियां अपने नाम, और बीवी को आप फिर इसमें बेयार मददगार छोड़े। तो देखिए दोनों तरह के मर्द हैं। अगर वो मर्द है तो जब मेरी वालदा की कब्र बन रही थी तो मेरे भाइयों ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मैं उनके पैसों से कब्र बनाऊं अपनी वालदा की। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। वजह, जब जिंदगी भर मेरी अम्मा की इज्जत रही, उनकी ख्वाहिश रही, जो दुआएं मेरी वालदा देती थी मेरे वालिद को, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो शौहर अपनी बीवियों को बेयार और मददगार नहीं छोड़ते, चाहे जिंदा हो या जिंदा ना हो, उनकी बीवी उनके मरने के बाद भी वफादार है। चले ठीक है, मिस साइमा नईम आपके साथ मौजूद है। अभी औरत के हम इस किरदार में बात कर रहे थे कि वो एक जगह समाजी औरत खातून है, एक जगह वो एक टीवी होस्ट हैं या साफ़ी हैं और घर से निकलती हैं, बाहर काम करती हैं। आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपको बहुत सारे ऐसे मतलब जाना होता होगा, आपको यूनियन काउंसिल में भी शायद बैठना हो। डॉक्टर अजहर से हम बात करेंगे इस पर भी। मैनेज कैसे करती हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी बात करें, हमारे मास्टरी और हमारा जो वर्किंग सिनेरियो है, तो बिल्कुल हमारा एक बहुत सवाल होता है आम खवातीन जो हमसे सवाल कर रही होती है कि बता कैसे करती है। क्योंकि इत्तेफाक है कि मेरे हस्बैंड भी नमाज से ताल्लुक है, तो वो हमारा टाइमिंग समय ऐसे होते हैं कि सुबह से शाम तक मैं बिजी होती हूँ और शाम से रात तक वो बिजी होते हैं। मतलब लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। वो हम मैनेज कर लेते हैं। अरे लड़ाई मैनेज कर लेते हैं। तो ये सवाल है हमारे होता है आम खवातीन को हम दावत देते हैं, आइए हमारे साथ काम करें हम मिलके। तो वो तो वही कहती है देखिए ना, मेरे तो घर है, बच्चे हैं और बहुत सारे मसाइल, निकलना मुश्किल है। तो हम ये बताते हैं कि देखिए हमारा भी घर है और हमारे भी बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रोफेशनल लाइफ में है। और जहाँ तक घर की बात है तो मैं अपनी कुकिंग मैं खुद करती हूँ, या घर मतलब मेटिकुलसली जो है ना क्लीन मैं रखती हूँ। मुझे क्रेज है साफ करने का, प्लांटेशन का मुझे बहुत शौक है, मतलब हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को ना मैनेज करना होता है। अगर मैं ये बात सोचती हूँ कभी बैठ के और डिस्कस भी करती हूँ कि अगर मैं जमात इस्लामी की नहीं होती बिलफर्ज तो मैं क्या कर रही होती। यही होता है कि मैं काम करके मैं शायद फेसबुक पे बैठी हुई होती है, मैं टीवी के सामने बैठी चाय पी रही होती है मिस्टर। लेकिन मुझे इस सिनेरियो में इतना कुछ मतलब मैनेज करना मैंने सीखा, अपनी टाइम मैनेजमेंट सीखी कि अगर मुझे सुबह के टाइम निकलना होता है तो फिर मुझे बहुत है कि एक दिन पहले मैं चीज़ों को प्रिपेयर कर लूँ, और अगर मुझे शाम के टाइम निकलना था मेरा तो मैं सुबह के टाइम फर्स्ट हाफ में चीज़ें कर लेंगे। अरे ये तो चलें, आज आप कर रही हैं ना, अभी आपके बच्चे बड़े हो गए, आप जमात इस्लामी में एज ए पॉलिटिकल वर्कर कब से काम कर रही हैं? मतलब बच्चे छोटे थे आपके घर में, आपकी ससुराल और पूरा उस वक्त भी था मामला? उस वक्त कम था लेकिन था। और ससुराल का ये है कि तफाक है कि ससुराल वाले सपोर्टिव थे, हस्बैंड सपोर्टिव थे, तो मुझे ऐसा इतना इशू नहीं हुआ। लेकिन अगेन ये बात की मैनेज किया, टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को कितना क्वालिटी टाइम देते हैं। ये मेरे हस्बैंड के साथ भी ये था कि वो बहुत बिजी होते हैं, लेकिन उनका ये था कि वो क्वालिटी टाइम दिया करते, जितना भी टाइम बच्चों के साथ हम क्वालिटी। और बच्चों को मैंने खुद पढ़ाया, मतलब बच्चों को पढ़ाती भी खुद हैं, घर की सफाई भी खुद करती हैं, खाना भी खुद पकाती हैं। देखिए जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट की बात की, देखिए जो औरत है ना, आप यकीन करें ये सारी खवातीन सबने पहले यकीनी तौर पर अपना घर चलाती है, उसके बाद देखिए ना घर की काम जो होते हैं, बर्तन झाड़ू कपड़े खाना बनाना 1 घंटा, टोटल 2 से 3 घंटे का काम है। बाकी के जो आप जो बात कह रही है ना, इस पे बड़ा फटा खड़ा हो जाएगा और हाउस वाइफ सारा फटा कर देंगे कि हम काम ही नहीं करते, इसका मतलब है। मैं आपको इसमें 2 आवर्स का काम, मैं इसको जुमले में मैं झाड़ू पोछा खुद नहीं कर सकती, ठीक है, मुझ पे चले वेट करके 1 घंटे कर लीजिए। लेकिन मैं इसका भी आपको मैं जो मेरी सोच है मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं झाड़ू पोछा खुद नहीं कर सकती, लेकिन याद रखिएगा कि जो हमारी जो मेड होती हैं इनसे घर नहीं चलता, घर की औरत ही चला रही होती है, ये हमारी हेल्पर्स होती हैं। क्या आप नहीं जानते, घर और घर वाले को औरत ही चला रही होती है। हाँ, दोनों को चलाती है, तो मान लेना चाहिए उसमें उसकी बेहतरी है। ठीक है, बात इतनी सी है कि ऐसा नहीं है कि हमें हेल्पर्स नहीं देते, हम तो अपने मियाँ को शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज्जत दी। और मैं कोई अपने शौहर के घर आके थोड़ी, हमारी ये बहनें, हम अपने बाप के घर से भी ऐसे ही आए, अल्लाह ताला ने हमें वहां भी नवाजा हुआ था, वहां कौन से हम झाड़ू पोछे कर रहे थे। ये मैंने इसलिए कहा कि जो बच्चियां अपने बापों के घर में झाड़ू पोछे नहीं कर रही हैं, उनको सासे ये सोच के ना लेके जाएंगे, कोई मर्द ये सोच के ना ब्याह के लेके जाए कि अब घर ले जाकर उसको मासी बनाना है, जो उसका स्टैंडर्ड है ना उसको मेंटेन करें। लेकिन मैं उसके साथ ये जुमला भी कह दूं कि मैं औरत उसको मानती हूँ कि अगर मर्द पर कोई बुरा वक्त आए तो झाड़ू पोछा क्या, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, बस हमें इज्जत दीजिए और आप हमें मोहब्बत। मैं आपको इसी पे एक वाकया सुनाता हूँ, हो सकता है कि मेरे
उससे बात से कोई आप लोग मदद कर सकें उनकी। मैं बताना चाहूँगा कल रात की, डॉक्टर साहब आपसे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ ये बात कर दूँ, मैं भूल ना जाऊँ। कल रात की बात है, मैं रोज़ाना जब ऑफिस से आता हूँ और मैं देखता था डेली के गरीबाबाद के बाद जब हसनस्कार से आते हैं, गरीबाबाद से राइट मुड़ते हैं तो उधर एक मियाँ बीवी हैं जो रात के 1 बजे खड़े होकर फ्रॉक बेच रहे होते हैं, दोनों नौजवान हैं। कल मैंने रुक के उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे मना किया कि तस्वीर ना बनाइए, वीडियो ना बनाइए। मैंने पूछा आप ये क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि मैं जॉब करता हूँ, सुबह में लियाकताबाद में रहता हूँ, शाम में आके फ्रॉक बनाती हैं, मेरी वाइफ फ्रॉक बनाती हैं और हम उसके बाद रात में फ्रॉक्स, छोटी सी फ्रॉक बेचते हैं। और उस औरत का, उस लड़की का, लड़की थी वो, उसने मुझे बहुत मदद की कि मेरी तस्वीर मत बनाए, मेरे ख़ानदान वालों को पता ना चल जाए कि मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने उससे कहा तुम्हें तो फ़ख्र करना चाहिए कि तुम मांग नहीं रही, अपने शौहर के साथ खड़ी हुई, तुम साथ दे रही हो। तो औरत ये थी। मैं चाहूँगा कि इस मौजू को लेके इंशाल्लाह किसी वक्त आपके पास दोबारा से आऊँ कि वो औरत जो अपने शौहर के साथ खड़े होकर काम कर रही है और वो औरत जो अपने शौहर के साथ खड़े होकर मांग रही है, रास्ते रास्ते आपको देख रहे हैं, इनमें कौन बेहतर है। मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करूँगा, आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, काउंसलर भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं और एक घरेलू खातून भी है। एक डॉक्टर होने के नाते अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक औरत की ज़हनी कैफियत, दिमागी कैफियत, मतलब वो जो उसको सुकून हासिल होता है, वो किस सतह पे जाके ज़्यादा बेहतर होता है? मतलब वो एक घर में अपने काम कर रही है तब, या वो बाहर ज़्यादा काम कर रही है तब? देखिए, ये आपने जो फील की बात की, इसमें आज से ये होता है कि ज़हनी सुकून जो है ना, बाहर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाए करार तो घर बनाया है ना, ज़हनी सुकून से वहीं पर होता है। लेकिन जब वो किसी प्रोफेशन से वाबस्ता होती है तो वो जो लोग उसके पास आते हैं, जिस तकलीफ के साथ, जिस तरह से, उनके साथ भी अगर उसकी डीलिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अमूमन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और चूँकि मैंने जब हाउस जॉब किया तो वो इदारे थे, ज़्यादा गवर्नमेंट इदारे, वहाँ पर जो गायनेकोलॉजिस्ट का किरदार देखा ना, उसने मुझे बहुत हर्ट किया। और उसी वक्त मैंने ये फैसला किया कि मैं ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनूंगी ना, चीखती दहाड़ती और इस तरीक़े से। तो बस वो चीज़ जो है ना, इस लिहाज से मुझे, जब मैं अपनी उस फील्ड में बैठी और मैंने एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम किया, तो अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मुझे, क्योंकि उस रवैये ने बहुत मायूस किया था हमारे गवर्नमेंट इदारों के जो गायनेकोलॉजिस्ट थे, तो उस लिहाज से मैं बिल्कुल हक़्क़ुल इम्कान की ही कोशिश करती रही और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वहाँ भी एक ज़हनी आसूदगी हासिल हुई। अरे वैसे आप जो आप एक ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, एक माँ के बारे में कहा जाता है कि बच्चे की तरबियत जो है वो माँ ही करती है, और कहा गया था हकीकत में ये माँ की गोद ही बच्चे की तरबियत करती है। अब कौन सी माँ हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने बच्चे को लेके चल सकती है दोनों सूरतों में? आप यकीनन प्रैक्टिकल हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, आप बाहर जाती हैं, लेकिन आप चूँकि एक ऐसी फील्ड थी जहाँ आपसे लोग मिलते हैं, आके ख़वातीन मिलती भी होंगी, जैसे मिसालिया से मिलती होंगी सबसे, आप क्या समझती हैं कौन सी माँ है जिसके बारे में आप कहेंगी कि ये अगर मैं तकाबुल करूँ तो ये माँ जो है ज़्यादा बेहतर होगी? देखिए, असल में जो जिम्मेदारी है ना माँ की, वो चाहे प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है, घरेलू है, जो भी है ना वो, लेकिन ये है कि वो जिम्मेदारी भी हम तो इम्कान उसने उसको अदा करना है। लेकिन असल चीज़ जो आप सब भी बात कर रहे हैं कि हर चीज़ होती है कि टाइम मैनेजमेंट होती है ना, उस और बच्चे के साथ जो उसका रिलेशन होता है, जैसे नारिया भाभी भी मैंने बात की ना कि देखिए थोड़ा सा एक ब्रेक ज़रूर लेती है वो उस पीरियड में, ज़रा सा बच्चा थोड़ा समझदार होता है। मैं भी ज़ाहिर है ब्रेक लिया, जब मेरा बच्चा थोड़ा इस्लाइक हो गया तो फिर मैंने दोबारा अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया। लेकिन ये है कि जो आप जैसे बच्चे की उस लिहाज से, तरबियत के लिहाज से कह रही हैं, तो देखिए तरबियत तो समझ लें कि मतलब वो फर्स्ट डे से शुरू हो जाती है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो भी दरअसल इसके सारे इफेक्ट्स होते हैं, वो सारा पीरियड्स जो होता है ना, उसके बाद होता है कि देखिए जब ये सारी चीज़ें हम ये सारी अच्छी तरह मैनेज करते चल रहे होते हैं, अपने बच्चों को भी सही टाइम में, वैसे मैंने भी खुद अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं लगाई, मतलब मेरे बच्चे माशाल्लाह ओ लेवल, इवन कि मैंने ओ लेवल तक भी जब मैं बैठ गई घर, मैं जब सऊदी अरब चले गई थी तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ जॉब नहीं की, क्योंकि बाहर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं छोटे बच्चों के साथ उसको मैनेज कर पाऊंगी, तो मैंने बाहर वो देख लिया। और फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को लेवल तक, जो लोग की बात जैसे आपने कहा कि सीट ज़ाया कर दी, देखिए मैं कहती हूँ कि अगर कोई एजुकेटेड औरत है वो कभी भी अपनी सीट ज़ाया नहीं करती, उसकी कभी ज़ाया नहीं होती।
थी, वो अपनी उस इल्मियत को कहीं ना कहीं वो करती रहती है। अब मैं इस वक्त बातें और जॉब नहीं हूँ, लेकिन मेरा टेलीफोनिक, मेरा जो अपने रियलिटीज के साथ में सारा कुछ मेरी तरफ से फैशन चलता है। तो मतलब इस लिहाज से जो है मुझे नहीं लगता कि मतलब यानी आप कभी इस तरह से कभी चीज़ ज़ाया नहीं होती। बच्चों की तरबियत के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी चीज़ थी हमने उस लिहाज से मतलब मेरे हस्बैंड ने इस लिहाज से वैसा बहुत तामुल किया, जो करेंगे मतलब मुझे नहीं ठीक है। बहरहाल एक मैं हमेशा एक बात ये कहता आया हूँ कि हमारी ख़वातीन को भी और शायद मर्द हो जिनको भी, उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना चाहिए, चाहे वो समाजी ताल्लुक समाजी मामलात हों या आपकी सियासत हो। बहरहाल होना चाहिए क्योंकि वो बहुत तरबियत करती है। आप जब मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं ना, इज्तिमाई में काम कर रहे होते हैं, बहुत सी तरबियत करती है। मैं भी सालिया के पास आना चाहूँगा एक सवाल लेकर, बड़ा अहम एक सवाल के साथ। एक खातून का एक मरतबा फ़ोन आया मेरे पास, और जब उन्होंने मुझे फेसबुक के ज़रिए सर्च किया था, और मैं नाम ख़ास तौर पर नहीं ले रहा उनका, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आप फोरम करते हैं तमाम टॉपिक्स पे, तो आप एक टॉपिक मैं देती हूँ उस पर फोरम करें। मैं जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये फोरम ये कीजिए कि औरत शादी करे क्यों। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कमा रही हूँ, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। फिर मैंने उनसे पूरी ज़िंदगी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि मैं तो थाईलैंड भी घूम के आ जाती हूँ, मैं तो फला जगह भी चली जाती हूँ, मैं एक स्कूल की बहुत बड़ी प्रिंसिपल हूँ, सब कुछ हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं। तो आप इस पर फोरम क्यों नहीं करते बार बार जब आप बातें कर रहे होते? जी बस तो जब उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो यही कहेंगी ना। वो कभी जब इसको एक्सपीरियंस करेंगी, जब वो शादी कर लेंगी, उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी ये जो शौहर होता है या शौहर के लिए बीवी होती है, ये एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, ठीक है। और अगर वो यहाँ पे ये बात कर रही थी तो मैं उनसे कहती इतनी ही तन्हाई है तो फिर आपने कोई दोस्त भी नहीं रखी होगी, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे रिश्ते। शौहर से बेहतरीन तो रिश्ता कोई नहीं। जब दुनिया बनी भी नहीं थी तो आसमान पर ये रिश्ता सबसे पहले बना था। इस रिश्ते को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? ये दुनिया का हसीन तरीन रिश्ता है और इसी रिश्ते पे पूरी दुनिया चल रही है। यानी मैं ये समझती हूँ, बच्चे हों या हम ससुराल की बात करें, सारी बातें कब हो रही हैं? तभी तो हो रही हैं जब मियाँ बीवी हैं और आगे नस्ल को चला रहे हैं। नस्लें इंसानी इस चीज से चल रही है। तो इस चीज को तो मैं बहुत ज्यादा हामी हूँ शादी की, बहुत। हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि जब तक कि कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता ज़हनी तौर पे, तो प्लीज प्रेशराइज ना करें। 12 साल की बच्ची की शादी, 14 साल की बच्ची की शादी, लड़का पैर पे नहीं खड़ा होगा, ससुराल वालों ने ब्याह कर लिया है, अब पता चल रहा है सास से पैसे मांग रही है, ससुर से पैसे मांग रही है। ये चीजें मैं इनकी हक में हूँ, लेकिन शादी को खूबसूरत बंधन है, ये लड्डू जरूर खाना चाहिए और सबको खाना चाहिए। और ये इतना खूबसूरत है कि इसमें आपको स्पेस देनी चाहिए। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जो कमजोर मर्द होते हैं ना, उन्हें जब ताकतवर औरत मिल जाए तो बहुत मसला हो जाता है, क्योंकि ताकतवर औरत की जो अपनी ताकत है ना, वो उस मर्द से बर्दाश्त नहीं होती। जब उससे बर्दाश्त नहीं होती है तो क्या करता है, वो फरार का रास्ता इख्तियार करता है। बहुत दफा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो मैंने शेल्टर होम में देखे हैं, क्योंकि इतनी बेहतरीन औरत को उसको देखते तो मैंने कहा मेरा देखने को दिल चाह रहा है वो तुम्हें छोड़कर गया कैसे। पता यही चला कि क्योंकि ये बाकिरदार भी बहुत थी, मजबूत भी बहुत थी, इसमें कमी भी कोई नहीं थी। तो कमी इसमें थोड़ी थी, कमी तो सादगी में थी। वो इसकी मजबूती को बर्दाश्त नहीं कर सका और कहाँ जाकर वो रुका एक ऐसी लो सेल्फ स्टीम की औरत पर जो उसको पता था कि बीवी का हक उसको कभी नहीं मिलेगा और शायद उसको चाहिए भी नहीं था, क्योंकि उसकी सारी चीजें एक लोअर साइड पे थी। हर औरत बेहतरीन नहीं होती। बेहतरीन औरत होने के लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है, बहुत बड़ी आपकी तरबियत चाहिए होती है, बहुत बड़ा किरदार होना पड़ता है, तब कोई बेहतरीन औरत बनती है जो देने वाले कुर्बानी के एंड पे जा रही होती है। मैंने कहा ना, आप जिस बात को नेगेटिव औरत का लेंगे मुझे वही चीज उसकी पॉजिटिव लगेगी। आपने कहा वो शीट छोड़ती है, वो शीट छोड़ती है कुर्बानी देने के लिए ना, ये कुर्बानी जरा कोई और देखिए। और याद रखिएगा कि बाशऊर माँ, उसकी तालीम उसको बाशऊर बनाती है, उसकी तरबियत उसको बाशऊर बनाती है। वो बाशऊर बनती है जब वो डॉक्टर बन रही होती है, इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर बैठी होती है। मैंने जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैंने मास्टर्स किया, लेकिन वही जो पढ़ी लिखी जो औरत है, जो इंजीनियर, डॉक्टर और ना जाने क्या क्या बनती है, हमारे सामने हम जर्नलिस्ट हैं 25-26 साल से देखते हुए आए, कभी कभार जब वो सास और नन बनती है तो बड़ी जालिम बनती है। नहीं, औरत अच्छी होती है, उसको बुरा बनाया जाता है। अच्छा, मर्द होते ही बुरा है? नहीं, मैंने जुमला नहीं कहा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो सास जो इस वक्त बहू के साथ बहुत जुल्म ज्यादती कर रही है, आप कभी उसकी साइकी भी देखिएगा। वो इनसिक्योर है, उसको लग रहा है मेरा बेटा हाथ से चला जाएगा। सोसाइटी वाले उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। जब हम बहू लाना चाहते हैं तो बहू लाने में भी इतने सारे प्रेशर होते हैं। खुद बेटे का बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि उसको बड़ी हसीन लड़की चाहिए होती है। लेकिन मैं इस बात की भी बिलीवर हूँ कि बहू तो आप ला रही है, लेकिन पहले अपने बेटे की मर्जी की लड़की लाइए ताकि वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी
जिंदगी गुजार सके, क्योंकि रिश्ता सबसे पहले उनका है। हम रिश्ते की बुनियाद ही ठीक नहीं रख रहे होते तो उससे फिर ये सारे हालात बनते हैं। वो जिसकी हमने बात कर दी बहू की सास की, क्यों नहीं किसी और की लड़ाई की बात होती, क्यों हमने बार बार सास बहू। मुझे ये शायद मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे बेहतरीन माँ मिली, मुझे बेहतरीन सास मिली। मेरी जिंदगी में तो कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है। मेरी तो अगर मैं अपनी सास की बात करूँ, आज मैं जहाँ बैठी हूँ, मैं तो सारिम साहब की शिकायत भी जिंदगी भर अपनी सास से करती थी। मतलब वो इतनी, और मुझे इतना सुकून मिलता था जब मैं कोई बात उन तक पहुंचाती थी, क्योंकि मुझे पता था वो माँ है, वो उसको बहुत अच्छी तरह से निभाएगी, और उन्होंने निभाया। तो सास का तो ये वाला किरदार होता है, जैसे इंसान घर में कोई मसला है तो माँ से कहता है, ससुराल में आप सास से कहते हैं। सास किसी बहू की इतनी बड़ी ताकत होती है कि मैं कहती हूँ कि माँ के बाद अगर कोई दूसरी ताकत है तो वो होती ही आपकी सास है। ये प्रोपेगेंडा इसको हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा नीचे, ताकि आजकल की बच्चियां इस बात को समझें कि सास से दोस्ती हो सकती है। और मैं एक बात कहती हूँ, सास को माँ क्या बनाना, सास माँ नहीं है आपकी, सास आपकी माँ नहीं है, लेकिन वो आपकी बुजुर्ग है। लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए ये बात, मतलब एक सास जो है वो सास मर्द की भी सास है कहीं। सारी औरतें बराबर नहीं होती, कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो हर कोई एक जैसे। मैं आपको एक बात बताऊं, एक हाथ से ताली तो नहीं बजती, लेकिन एक जात आसमान पर भी तो बैठी है, एक जात वहां से भी तो इंसाफ करती है। किसी को महीनों में इंसाफ मिल जाता है अल्लाह की तरफ से, किसी को सालों में। वहां देर है लेकिन वहां अंधेर नहीं है। इतने कीमती रिश्तों को जब हम इतनी बुरी तरह इस पर वार करते रहेंगे तो हमारा पूरा फैमिली सिस्टम बहुत बुरी तरह खराब हो चुका है। मैं ऐसी सासों को भी जानती हूँ जिन्होंने जलाने में, यानी अगर चूल्हा फटा है तो बेटी पे नहीं फटा, वो जब बहू किचन में काम कर रही थी उसी पर फटा है वो चूल्हा, लेकिन फिर उसकी बेटी भी किसी के घर है। मैं आपको इस वक्त एक बात बता दूं, मेरे शेल्टर में एक बच्ची आई, बच्ची तो नहीं थी, शादीशुदा थी, उसकी अपनी एक बेटी थी, उसकी नंद उसको छोड़कर चली गई शेल्टर में। उसके हालात इतने उसने बिगाड़े, मियां जेल चला गया, वो यहाँ आ गई। अभी वो बच्ची मेरे पास ही थी, शायद उसको रहते हुए 2 साल गुजरे होंगे। उसकी उसी नंद की बेटी, सगी बेटी, मेरे पास शेल्टर होम में रहने आ गई। इसको कहते हैं मकाफाते अमल। मैं जब काश हम समझ सके। मैं सारे मुझे बात करता हूँ कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अब हम सास बहू की उसमें उलझ गए, जब हमारा असल मकसद हाउस वाइफ और वर्किंग वुमेन था। लेकिन वर्किंग वुमेन में मेरे एक दोस्त थे, उसकी बीवी, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ी लिखी खातून है, उसके घर में ये फंडा रहा मुसलसल के यार, मैं जब भी बताऊँ की वालदा कहती देखो ये क्या है, कोई काम ही नहीं करती, ना रोटी पकाती है, ना खाना पकाती है, कुछ नहीं करती। मैं कहते कमा के दे रही है आपको, और क्या चाहिए, इतना कमा रही है। तो वो ये कहता है कि यार मैं इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, वो कहीं मतलब हमारे घर में हम 35-40 हज़ार रुपए कि हम वो अफोर्ड कर लेते हैं, मैड हम बहुत सुकून की नहीं गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो माशरा है ना, आसपास रिश्तेदार, खाला खालू, मामू मामू, पता नहीं क्या क्या, सब ड्रामा लगाए रहते हैं। ये कौन सुधारेगा, इनको कौन बताएगा कि भाई आप अपनी हुदूद में रहें? आपको किसने कहा कि आप आगे बिला वजह? देखिए, सबसे पहले एक बात आपको बताऊं कि जो हम पिछली दहाइयों की बात करें कि औरत घर में रहती थी, घर चलाती थी, लेकिन जैसे जैसे तालीम हासिल करती गई, एजुकेटेड होती गई, दुनिया को समझती गई, और इस वक्त जो हमारा माशरा है वो एक तरीके से यूरोप के अंदाज का होता जा रहा है कि घर अच्छा चलाने के लिए अगर औरत पढ़ी लिखी है तो मर्द के बराबर नहीं है, लेकिन मर्द के शाना बशाना काम कर सकती है। क्योंकि देखिए, जब अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में कि मर्द एक, जैसे गवाही अगर बात करें, एक मर्द की गवाही और 2 औरतों की गवाही, ठीक है, समझ आ रही है ना बात? औरत नीचे है, वो रहेगी हमेशा। लेकिन जहां तक बात है इस हवाले से कि औरत काम नहीं करती, लेकिन हर किसी का अपना अंदाज है, जिसके ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। औरत को खुद को ये समझने की जरूरत है कि जब वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, और उसे अगर ये करना है तो उसे सब्र और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना होगा। और जो औरत लड़की अपने घर की बातें अपने तक रखती, वही कामयाब है। अम्मी घर जाके महंगे में बताना, रिश्तेदारों से डिस्कस करना, उनके मशवरों पर अमल करना, ये काम खराब हो जाता है। आप सिर्फ अपनी माँ ने अपने शौहर को अपना दोस्त बनाए। देखिए, शौहर बहुत प्यारी चीज है, जिस तरह भाभी ने कहा कि जिन खातून का आपने जिक्र किया था, ये इतना खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ने बनाया। सबसे पहला रिश्ता क्या परवरदिगार माँ बाप नहीं बना सकता था, तो बहन भाई नहीं बना सकता, उसने क्या बनाया? मियाँ बीवी। ये खूबसूरत रिश्ता है जिससे नस्लें चलती हैं, और वाकई में एक औरत की इज्जत और उसका मकाम महफूज होता है शादी के बाद, ठीक है। और हमारा माशरा जो चंद साल लड़की के ऊपर होते हैं, 15-20 से, और लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, शादी नहीं हुई, रिश्ता नहीं हुआ, लड़की ऑटोमेटिकली एक ज़हनी आने लगती है, ठीक है। वो मेरे ख्याल से शायद अगर 90% खवातीन की बात करूं तो उसमें से शायद मुश्किल से 5 भी नहीं होंगी जो ये कहेंगे जी हमें शादी नहीं करनी, जरूरत नहीं। तो आप अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करिए, आपका दीन महफूज हो रहा है, आपकी इज्जत महफूज हो रही है, आपको मकाम मिल रहा है जो अल्लाह के नबी ने दिया, जो हमारे नबी की सुन्नत है, आप उसके खिलाफ बात करिए कि शादी की क्या जरूरत है। ऐसे ही ना ये तो अब जब अल्लाह के हुक्म पे चलेंगे, उसकी नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बायोलॉजिकली भी ना एक औरत को
مرد کی مرد کو عورت کی ضرورت ہے, یعنی صرف اللہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں. جب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تو ہمیں تو اس چیز کو نو کرنے کی ضرورت ہی اور نسل انسانی کیسے چلائیں. اور دوسری بات عورت جو یہ کہتی کہ میں اور میری مرضی, تو نہیں ہے یہ, ہم یہ غلط ہے. جب ہم ہیں ہی مرد سے سیکنڈ, مطلب اس سے کم ہے رتبے میں, تو ہیں ہم اس پہ بحث کر ہی نہیں سکتے, ہم اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے. تو بہتر ہے کہ جو خواتین اپنے آپ کو, اپنے گھر کو چلانا چاہتی ہیں, اپنی لائف کو اچھا کرنا چاہتی ہیں, اپنے شوہر سے دوستی کریں, اس کو سب سے بڑی بات اس کا حکم مانیں. ایک آخری بات آپ سے, آخری بات ایک ایسی چیز میں ایڈ کروں گی کیونکہ میری بہن ایک بات کر رہی ہے, میں بالکل کہتی ہوں مقابلہ کوئی نہیں ہے. جی ان کی بات سن لو, آپ بولیں کیا کہہ رہے ہیں. آخری بات کروں گا. یہ جو ابھی بات ہے نا کہ ہم ان سے کم ہیں, دیکھیے شوہر ایک یہ تو ہمارا رتبہ نہیں ہے نا کہ شوہر جو ہے ٹھیک ہے ان کی بات سن لے, سب کچھ وہ ہمارے سربراہ ہیں سب ہے, لیکن ایک جب ماں کی اسی شوہر کی جب ہم اولاد کو پیدا کرتے ہیں تو پھر جو ہمارا رتبہ ہے پھر وہ اس کا رتبہ نہیں ہے. تو اسی گھر میں رہتے ہوئے چیزوں کو کیسے اللہ نے مقابلہ شروع ہو گیا نا, دیکھیں میں یہ تو کہہ رہا تھا نہیں ہوا اللہ نے. اور مطلب مجھے عورت کو کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کمتر ہے. مطلب میں یہ سنی, جب آپ مرد اور عورت کی بات کر رہے ہیں تو الگ الگ روپ ہے نا, تو کسی روپ میں اگر اللہ نے مرد کو برتر رکھا ہے تو فوراً اللہ نے عورت کو بھی کسی روپ میں برتر. تو میں عورت کی کمتری کو نہیں مانتی, میں کہتی ہوں نہ کوئی برابری ہے نہ کمتری ہے, دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے. ماں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, میں ان ساسوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں, چاہے میری ہوں یا اور بھی بہت ساری جن کی بہویں بڑی اونچی پوزیشنز پر ہوتی ہیں. آپ کی سوچ ان کی کیا عزتیں ہوتی ہیں جب وہ کسی محفل میں جاتے ہیں, کیونکہ سب ان ساسو ماں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں کہ اپنی بہو سے کہیے گا ہمارا یہ کام کرے, وہ ڈاکٹر ہے تو پلیز ہماری یہ والی اس چیز کو دیکھ لیں, اس میڈیکل کو دیکھ. ساری ساتھ آلیہ بڑھنے کی ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا. لیکن آپ دیکھیے میری ساس تو خیر ان کو تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت ہی محبت ہے, لیکن ساس کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب اس کی بہو کسی مقام پر پہنچتی. چلیے میں آپ کی تسلی کے لیے اتنا کہہ دیتی ہوں کہ وہ بیٹی کے برابر اگر نہیں بھی خوش ہوتی پھر بھی وہ اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اس کے پوتوں پوتیوں کی ماں کی اتنی عزت ہے, اس کے بیٹے کو اتنی اچھی جیون ساتھی ملی ہے. تو ساسوں کو میں برا کہتے ہوئے مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے. ہاں میں ان ساسوں کو ضرور برا کہتی ہوں اور انہیں جیل تک بھی لے جاتی ہوں اور کہیں تک بھی لے جاتی ہوں جنہوں نے بہوؤں پر صحیح معنوں میں ظلم ڈال دیا. ٹھیک ہے, بس میں آخری سوال ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ سے کل جب ایک بات ہو رہی تھی تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ وہ عورت جو گھر میں رہتی ہے, وہ پڑھی لکھی خاتون ہے, گھر دیکھ رہی ہے, تو وہ کون کون سے طریقے ہیں جس کی بنیاد پر وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی معاشی ضرورت پوری کر سکتی ہے؟ دیکھیں مصطفیٰ ابھی صاحب, یہ تو آج کل کی بہت زیادہ میجر ضرورت ہو گئی کہ جو مہنگائی کا دور ہے, مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہ کے کام کر سکتے ہیں. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خصوصیات دیا, وہ پڑھی لکھی ہے, اس میں ڈیفینیٹلی کوئی ٹیلنٹ ہوگا, وہ سلائی کڑھائی اچھی کر سکتی ہوگی, کھانے اچھے بنا سکتی ہوگی, یا آن لائن کوئی ایسا کام کر سکتی, بزنس کر سکتی ہے, ارن کر سکتی. ہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ضروری نہیں کہ وہ عورت خود ہی کرے. ہمارے جو گھر میں میڈس آتی ہیں نا, پڑھی لکھی نہیں ہوتی لیکن ان کے پاس بہت زیادہ ہنر ہوتا ہے سلائی کا, کڑھائی کا, یا کسی بھی قسم کی. تو ہم ایک پورا ایک ٹیم بنا کے کام کر سکتے ہیں. وہ عورت گھر بیٹھ کے بہت کچھ رن کر سکتی, کما سکتی ہے, اور اگر وہ کوئی بیوٹیشین ہے تو بھی, اور کسی قسم کا بوتیک کھول سکتی. تو جو عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا, اور جس طریقے کی عورت کی ایک ہوتا ہے نا سینس آف ہیومر, کہ وہ مرد کی جب نگاہ کو پہچان سکتی ہے کہ اچھی ہے یا بری, تو وہ ہر کام کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت سوچ سمجھ بوجھ دی ہے. بس تھوڑا سا اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کہ اس کو آپ اپنے مرد کی پرمیشن سے کریں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے کام کریں گے تو یہ گھر. چلیں, بہت شکریہ صاحب. میں آپ سب مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ایم ایچ ایس فورم میں. اور ہم نے آج گفتگو کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی مقابلہ کریں کہ ہاؤس وائف زیادہ اہم ہے کہ ورکنگ وومن. اصل بات یہ ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. اور ایک جو میرا ایک سوال بار بار تھا کہ ایک پروفیشنل عورت ہے جس نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی یا ڈاکٹر بنی یا اس میں گئی, اور اس کے بعد وہ گھر میں بیٹھ گئی, تو کیا سیٹ ضائع ہو گئی؟ تو سیٹ ضائع نہیں ہوتی, بلکہ وہ اس تعلیم کا سارا جو اثر ہے وہ اپنے بچوں پہ منتقل کر رہی ہوتی ہے, اپنے گھر پہ اس کا استعمال کر رہی ہوتی ہے. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہر شخص کا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اس کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم ذمہ داری دی ہے ایز اے مسلم, ہمیں بھی دی ہے, اور ایک انسان ہونے کے ناطے بھی دی ہے کہ ہم اس معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. میں ایک جرنلسٹ ہوں تو میرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میری جرنلزم سے اس معاشرے کو کچھ مل جائے. یہ ایک ڈاکٹر ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے کو کچھ ان سے مل جائے. یہ ہوسٹ ہے یا اس معاشرے کو اچھا پروگرام دے سکیں. آپ کے سامنے مثالیں ساری بڑھنی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کو ان سے کیا کچھ حاصل ہو رہا ہے. یہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کی مدد کر رہی ہیں. آپ کے سامنے میں نے مس سائمہ نعیم کو پیش کیا, ڈاکٹر عذرا موجود ہیں, یہ سیاسی طور پہ اس معاشرے کی خدمت کر رہی ہیں جماعت اسلامی کی پلیٹ فارم سے. تو آپ جس جگہ پر بھی ہیں, جہاں پر بھی ہیں, جو بھی ہیں, اس معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں.
اپنے رائے سے آگاہ کیجیے گا اس فورم سے کیا حاصل ہوا. آپ کے سامنے اگر کوئی ٹاپک ایسا آتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میرے کانٹیکٹ نمبر پہ بات کر سکتے ہیں. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر ہیلپ انٹرنیشنل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ساری سہولت فراہم کی, اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی فورم میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.